Hello students, how are you? I think you are all fine. Dear students, today in the English class I am going to start a new lesson, a new chapter, and that is very important chapter from your grammar book. Okay? You can see on the board I have written the chapter is none but grammar topic verb. Okay? You have learned so many verbs. You have learned so many verbs and their third forms, second forms, past forms, but you need to know more about verbs. Okay? So verbs, if I discuss about verbs, it will take long hours. Okay? And there should be a deep discussion about verbs, but in your grammar book, whatever discussed, that is very short. The topic is very deep. The topic is very important, okay, and difficult topic. But as you are in class 5, you need to know something about the topic and the discussion, okay. You need not to go so deep inside, but you need to know what is that chapter and what are verbs, what are their classification, everything you should know, okay. So I am trying to discuss verb in my own way so that you can understand well, okay. There are lot of discussion about verbs, there are lot of verbs there, but I have just given some and I have just given very short description, short discussion, okay. Just try to listen and try to understand. If there is any doubt, you must ask me, okay. First of all, what is verb? What is a verb? Okay. A verb is a word used to describe an action, okay, occurrence or a state. So what is verb? Verb एक word है जो कोई काम को बताने के लिए, काम को वर्णना के लिए, हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाता है, और occurrence कुछ घटना घटे है, state कुछ अवस्था है, उसको बताने के लिए हम लोग verb इस्तेमाल करते हैं, ओके. So verb is a word used to describe occurrence, action and a state. Okay, okay. So this is what? This is verb. Now coming to types. There are so many types of verbs are there. I have written some of them, okay. And in your book there is not much discussed, but I have tried to mix up book and my mind and from other sources so that you can understand what are the verbs and how many types of verbs are there and which type of verbs are what. Okay? Types. Transitive verb, intransitive verb, finite verb, non-finite verb, helping or auxiliary verbs. Okay? So you can say these type of verbs are there, generally used and generally defined. And there are then the verbs which shows event, okay. There are verbs which shows the link, they are event verb, they are linking verb, okay. There are lots of verbs there, but you need to know these, and if you know these are more for you, okay. Now coming to other verbs like be verbs. These are all helping verbs, okay. Be verbs, do verbs, have verbs, do verbs. These come under helping verbs, okay, or auxiliary verbs. So what are be verbs? I already discussed in your previous classes. So just to remember you, to remind you, I have discussed once again. What are be verbs? Am, is, are, was, were, be, being. These are be verbs. What are do verbs? Do, did, and does. These are do verbs, and they are also helping verbs. They are called helping verbs. Have verbs. What are have verbs? Have, has, had. Modal auxiliaries. What are modal auxiliaries? Can, could, shall, should, may, might, will, could, ought to, must. So you should remember this, okay? There is nothing to understand here. This part you just remember. You need to remember this part. Nothing to understand here. Okay? And there are lot to learn. There are lot to learn in later classes about verbs. Now for this class, whatever I discuss, you just listen carefully. Okay? Transitive
transitive verb. So before knowing transitive verb, you should know what is subject, what is object. You know subject, what is subject? Subject is the word which is the about which or about what we say something in a sentence. सब्जेक्ट ऐसा एक शब्द है सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं सेंटेंस में. सब्जेक्ट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा जाता है. ओके. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? आफ्टर द verb, if there is a noun, if there is a pronoun, that is object. Okay. After the verb, if there is a noun or there is a pronoun, that is object. And another thing I am telling, listen carefully. In a sentence, you have to find out object. If you want to know what is transitive verb, what is intransitive verb. So in a sentence, you need to know what? You need to know what is object. Now, how to find out object in a verb, in a sentence? How to find out an object in a sentence? In a sentence, if you ask a question to the subject and verb, सब्जेक्ट और वर्ब को तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को तुम लोग जानते हो. सब्जेक्ट इज द मेन मैटर ऑफ डिस्कशन इन सेंटेंस. जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है. ओके. सो एक सेंटेंस में मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आई रीड स्टोरी बुक. तो आई जो है सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है, मैं क्या पढ़ता हूँ वही बताया जा रहा है. ओके. बुक gives us knowledge. किताब हम लोगों को नॉलेज देते हैं. तो बुक्स के बारे में कुछ कहा गया. बुक इज सब्जेक्ट. काउ इट्स ग्रास. गाय घास खाते हैं. गाय के बारे में कुछ कहा गया. दिस इज सब्जेक्ट. ओके. सो सब्जेक्ट इज द वर्ड इन द सेंटेंस अबाउट व्हिच वी से समथिंग. अबाउट व्हाट वी से समथिंग. ओके. नाउ इफ यू आस्क सब्जेक्ट एंड वर्ब, यू नो वर्ब इज द एक्शन वर्ड. Verb is the word of occurrence. Verb is the word of state. एक सेंटेंस में अवस्था को समझाने के लिए, काम समझाने के लिए, या तो कुछ घटना घटे उसको बताने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसके कहते हैं सब्जेक्ट. जैसे कि गो, कम, सिट, रन, स्टैंड, वॉच. दीज आर वर्ब्स. सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में अगर आएगा उसको तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना है व्हाट से. व्हाट. सब्जेक्ट और वर्ब को क्वेश्चन पूछोगे व्हाट. आंसर जो मिलेगा वो या तो सब्जेक्ट एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा. आंसर के रूप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा अगर होता है तो. ओके. और जो नाउन और प्रोनाउन में आंसर के रूप में मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ. आई प्ले क्रिकेट. आई इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब. सो आई सब्जेक्ट और प्ले वर्ब, इन दोनों को क्वेश्चन पूछो व्हाट से. आई प्ले व्हाट. I play. I subject, play verb. Question पूछो. I play what? Answer comes cricket. So cricket is object. Okay? He helps me a lot. वो मुझे बहुत मदद करते हैं. So he is the subject. Helps is the verb. Ask the question. He helps what? There is no answer. वो मदद करते हैं. क्या मदद करते हैं? आंसर नहीं है. तब क्या करोगे? He helps to whom? किसको मदद करते हैं? The answer comes me. He helps me a lot. He helps to whom? Answer comes me. So me also an object. Why? You need to ask a question with what or to whom. Okay? You need to ask subject and verb a question with what or to whom. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे व्हाट से या तो टू whom. किसको. एक क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है किसको. तो ये दोनों वर्ड से अगर आंसर क्वेश्चन करोगे सब्जेक्ट और वर्ब को, जो आंसर आएगा वही होगा ऑब्जेक्ट. पहले मैं बताया था व्हाट से क्वेश्चन करोगे जो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बताया टू whom से क्वेश्चन पूछोगे जो आंसर आएगा वो भी ऑब्जेक्ट. मतलब हम लोग यही समझ में आ गया एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को अगर व्हाट से और टू whom से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो वर्ड आएगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. ओके. और नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो,
दैट शुड बी ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम लोगों को ढूंढने के लिए एक तरीका मिल गया। क्या तरीका है? सब्जेक्ट और वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से, या तो टू हुम से, व्हाट से या तो टू हुम से, और दोनों सवाल के बाद अगर जवाब मिलेगा तो ये होगा ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसे सेंटेंस में होता है व्हाट से क्वेश्चन पूछने से जवाब नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर टू होम से क्वेश्चन पूछेंगे, टू होम ये शब्द से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर देखते हैं है आंसर तो है कोई भी ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है सब्जेक्ट और वर्ब को क्वेश्चन पूछने से व्हाट से क्वेश्चन पूछते जवाब नहीं है, टू होम से क्वेश्चन पूछते जवाब नहीं है, मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं ये हम लोगों को जानकारी चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढने के लिए या तो इंट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ आइडिया चाहिए तो हम लोगों को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? वर्ब के बाद एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट होता है। और कभी कभी वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन होने से पता नहीं चलता वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है, सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को एक साथ में सवाल करना है। क्या से? व्हाट से। सवाल पूछ दिया तो आंसर मिल गया तो ऑब्जेक्ट मिल गया, और व्हाट से सवाल किया जवाब नहीं मिल रहा है तो टू होम से क्वेश्चन पूछो, टू होम किसको? अगर जवाब है तो ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलने से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं एक सेंटेंस में दिखाता हूँ एग्जांपल। ओके, फर्स्ट सेंटेंस I saw him on the road. I saw मैं देखा था, him उसको कहाँ पे? on the road रास्ते में। तो I subject saw देखा था बात, इन दोनों को सवाल पूछना है व्हाट से। I saw मैं देखा था, व्हाट क्या देखा था? आंसर नहीं आ रहा है। क्या देखा था? आंसर नहीं आ रहा है। I saw मैं देखा था, टू whom किसको देखा था? आंसर आ रहा है him आंसर आ रहा है। किसको देखा था? him उसको। सो दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है उस सेंटेंस में जो वर्ब रहता है उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये जो सॉ है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो मैं लिख चुका हूं ट्रांजिटिव, तो सॉ वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, वो एक कठिन परिस्थिति में है। तो ही सब्जेक्ट इज वर्ब। क्वेश्चन पूछो, ही इज वो है कठिन परिस्थिति में। सवाल पूछो ही इज वो है क्या? जवाब नहीं है। टू हुम किसको? जवाब नहीं है। अगर पूछेंगे किस तरह परिस्थिति में तो अलग हो गया, किस तरह ऐसा नहीं है। व्हाट से और टू हुम से दोनों चीज से क्वेश्चन पूछना है। ओके, व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछेंगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, टू हुम से क्वेश्चन पूछेंगे कोई सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन आएंगे, जैसे कोई प्रोनाउन आएंगे, ही, शी, मी, वी, ये सब है प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन के रूप में हम लोग वहाँ पे उस साइड में ऑब्जेक्ट में या तो मी, आस, देम, हार, मी तो बताया मैं ये सब मिलेगा। तो ओके, तो ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ही इज को अगर सवाल करोगे व्हाट इज व्हाट, आंसर नहीं है। ही इज टू हुम, आंसर नहीं है। सो दिस sentence has subject, has verb, but there is no object there. So this verb is, ये जो is verb है ये intransitive verb है। जिस verb में ऑब्जेक्ट रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो they are swimming, next sentence, they are swimming, वो लोग तैर रहे हैं in the pond, तालाब में। तालाब में वो लोग तैर रहे हैं। सब्जेक्ट दे, वर्ब आर, दे आर वो वर्ब क्या है? आर स्विमिंग, तैर रहे हैं। दे आर स्विमिंग वो लोग तैर रहे हैं। सो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। अब सवाल करो, दे आर स्विमिंग व्हाट, वो लोग तैर रहे हैं क्या? आंसर नहीं है। दे आर स्विमिंग टू हुम किसको? जवाब नहीं है।
सो आर स्विमिंग, ये जो भाग है ये है इंट्रांसिटिव भाग, इंट्रांसिटिव। आई हैव रिटन ऑन इट इंट्रांसिटिव int. Here is intransitive. Okay, I can help you in this matter. Now subject I can verb, help is also verb, can help. Okay, I can help, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। तुम है, देखो I can help, मैं कर सकता हूँ मदद। You, तुमको, I can help, मैं मदद कर सकता हूँ। किसको? You, तुमको मदद कर सकता हूँ, या तो तुम्हें मदद कर सकता हूँ। In this matter, इस विषय में। Subject I can help verb, ask question, I can help what, मैं मदद कर सकता हूँ क्या? आंसर नहीं है। I can help to whom, किसको? आंसर आ रहा है you, तुमको। So here you is object. You is object. Now this verb can help is transitive verb because we have object. तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांजिटिव, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वही है इंट्रांजिटिव। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस, वी स्टडी टू लर्न, हम लोग पढ़ते हैं, टू लर्न, सीखने के लिए। तो ये इस सेंटेंस में तुम लोगों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ढूंढने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस तरह सेंटेंस में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, नेक्स्ट वर्ब है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो है, हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच कैन कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ओके, which can complete the meaning of sentence and which goes as per subject number, okay, as per person and number of a subject. एक सब्जेक्ट का पर्सन किस तरह है, एक सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसके हिसाब से वो वर्ब जाते हैं। ओके, जैसे कि आई लिखने के बाद हम लोग गो लिख सकते हैं, मगर ही लिखने के बाद हम लोग गो नहीं लिख सकते, गोस लिख सकते हैं। ओके, तो यू के बाद हम लोग इज नहीं लिख सकते हैं, यू के बाद आर लिख सकते हैं। दे के साथ एम नहीं लिख सकते हैं, एम लिखते हैं हम लोग किसके साथ? एम लिखते हैं हम लोग आई के साथ। तो ये सब बहुत सारा कुछ है भाग, जो भाग सब्जेक्ट के हिसाब में चेंज होते जाते हैं। तो जो भाग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते जाते हैं उसको हम लोग फाइनाइट भाग कहते हैं। ओके, जो भाग सब्जेक्ट के बाद आते हैं अपना अपना रूप बदल के, सब्जेक्ट अगर बदल जाएंगे उसका पार्सल नंबर बदल जाते हैं, उसका चेहरा भी बदल जाता है, फॉर्म्स बदल जाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ओके, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट अगर उनका सब्जेक्ट का पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट का नंबर चेंज होता है, उस वर्ब का चेहरे का बदलाव नहीं होता है, चेहरे का कुछ चेंज नहीं होता है, एक ही रह जाते हैं। दोज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर में इंफिनिटिव नाम का एक वर्ब आता है। ओके, वो इंफिनिटिव जो है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। टू स्टडी टू लर्न, हम लोग पढ़ते हैं इसलिए, टू लर्न सीखने के लिए। देखो स्टडी एक वर्ब है, लर्न एक वर्ब है, मगर लर्न के पहले टू दिया हुआ है, तो इस तरह का वर्ब रहेगा टू लर्न, टू ब्रेक, टू गो, टू सी। दीज आर कॉल्ड इंफिनिटिव and they come under non-finite verb. Okay, and so far I have seen I saw, मैं देखा था कि उसको, saw जो verb है ये finite verb है, क्योंकि I होता saw होता, you होता saw होता, past tense में कोई बदलाव नहीं होता है, मगर present tense इस्तेमाल करता तो I see होता, he sees होता। जैसे he is, I के बाद is नहीं होता है, I am। तो वर्ब का चेहरा बदल जाता है, अगर सब्जेक्ट बदल जाता है, उसका पार्सन बदल जाते हैं, उसका नंबर बदल जाते हैं। ओके, ही इज, दे आर, देखो इज की जगह पे आर बदल जाएगा। मगर यहाँ पे देखो वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, टू लर्न सीखने के लिए। अगर उनकी जगह में दे हो गया, दे स्टडी टू लर्न। अगर दे की जगह में ही हो गया, ही स्टडीज, देखो स्टडी को चेंज करोगे, मगर लर्न चेंज नहीं होगा। दे ही स्टडीज, वो पढ़ते हैं, टू लर्न सीखने के लिए। तो टू लर्न जो है सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला।
टू के बाद अगर कोई वर्ब होता है उस वर्ब का चेहरा कभी बदलाव नहीं होता है। एंड टू एडेड वर्ब, वर्ब फॉलोड बाय टू, वर्ब फॉलोड बाय टू इज कॉल्ड इंफिनिटिव। मतलब एक वर्ब उसके पहले अगर टू आता है तो वो होता है इंफिनिटिव। ओके, और इंफिनिटिव किसमें आता है? नॉन फाइनाइट में आता है। और फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वर्ब मैं सिखा दिया हूँ। फाइनाइट मतलब एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और जिस वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब में बदलते रहते हैं। ओके, now coming to helping verbs, already I discussed helping verbs are these verbs. Helping verbs actually help to make tense, help to make mode. एक सेंटेंस का किस तरह रूप, किस तरह एक सेंटेंस में क्या बोलना चाहते हैं, मतलब उसका मोड किस तरह है, आदेश है, अनुरोध है, उपदेश है, एक सिंपल सा बात है या तो क्वेश्चन है, इसको बताने के लिए, बनाने के लिए इस तरह हेल्पिंग वर्ब को लगता है। ओके, एक सेंटेंस में एक जन का क्षमता है, क्या क्षमता है उनका, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसका प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन, तो ये सब बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है उसका कुछ काम ऐसा ही होता है कि वो मददगार है। हेल्पिंग मतलब मददगार। एक सेंटेंस में इसका कुछ अर्थ अलग से नहीं रहता है, अलग कुछ अर्थ नहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल होगा इसके साथ एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है जिसका हम लोग फाइनाइट वर्ब या तो मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में आता है उसका कुछ अलग से अर्थ नहीं होता है, जस्ट सेंटेंस का टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का मोड बनाने के लिए, मतलब अवस्था किस तरह अवस्था में है उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ही इज वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, तो देखने का मतलब है वॉच, और वो ही टीवी तो अलग बात है, मगर इज जो लिखा है ना, इज का कोई मतलब नहीं है इस सेंटेंस में, खाली सेंटेंस को बनाने के लिए आया है। ही इज वाचिंग मतलब एक कॉन्टिन्यूअस टेंस, चल रहा है काम, इसको बताने के लिए इज आया है और वॉच के साथ आई भी लगा है। तो वॉच का मतलब देखना, ही इज वाचिंग टीवी, तो वो टीवी देख रहा है, तो वॉच का मतलब देखना, ही का मतलब वो, टीवी तो अलग है, तो इज का जो कुछ अलग मतलब ही नहीं आया, मगर इज का जरूरी है इस सेंटेंस में। सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कैन में कैन डू, तो डू मतलब करना, कैन में मेरा क्षमता समझा है, मेरा मैं कर सकता हूँ या तो नहीं ये बता रहा है, मगर कैन का कुछ अलग अर्थ नहीं होता है। ओके, जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, तो आई मतलब मैं, कम मतलब आना, इन मतलब अंदर में, तो मतलब सब कुछ का एक अलग अलग अर्थ है, मगर मे का कुछ मतलब नहीं है। मे में क्या होता है, एक परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस मे का कुछ अर्थ नहीं होता है, ये एक ऑक्सिलरी और हेल्पिंग है। तो मे, कैन, कुड, शैल, शुड, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। हैव, हैज, हैव। डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन, तो डू का कुछ अर्थ नहीं होता है, हैव का एक अर्थ होता है। तो हैव जो है इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, मगर डू जो है हेल्पिंग के लिए आया है, क्वेश्चन बनाने के लिए आया है। तो डू यू हैव एनी पेन, हैव मेन वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी नहीं है, और डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, क्वेश्चन बनाने के लिए आया है। और एक सेंटेंस बता दो, हैव यू डन योर होमवर्क, सो हैव यू डन, डन मतलब करना, यू मतलब तुम, होमवर्क तो गृह कार्य होता है, तो तीनों का अर्थ है, मगर हैव का यहाँ पर कुछ अर्थ नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए आया है। यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही होता है, एक सेंटेंस में ऐसा एक वर्ब इस्तेमाल होगा जिसका अलग से कुछ अर्थ नहीं होगा, एक सेंटेंस को बनाने के लिए आएगा, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी verbs just play the role to make the tense, to make the mood, to ask a question, to say any situation. Situation means you can, cannot, your willing, your determination, your wish. So this type of things. Okay? तो जिस तरह मैं बात बताया हूँ हेल्पिंग वर्ब, ये सब मददगार, हेल्पिंग मतलब मददगार सेंटेंस बनाने के लिए आता है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
to ask a sentence, to ask a question, we use the helping verbs at the very beginning of the sentence. क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग helping verbs को सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन बनाने की मदद करते हैं. For making negative, we use these helping verbs, modal verbs. That means auxiliary verbs, who verbs, have verbs, modal verbs. To make negative, negative बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. And with these verbs we use no and not. Okay. So these are all about verbs discussion. I wanted to discuss in this sentence, and I have left so many sentences to be understood. कुछ sentences अभी मैं लिखा हूँ, उसको मैं समझाने वाला हूँ. This is a folding umbrella. In this sentence, is main verb. Is main verb. This subject. This is a folding umbrella. Umbrella is noun. A article. Okay. Here, folding is coming from a verb. Fold. Folding जो है एक verb fold से आता है. तो एक verb fold उससे folding आता है. एक verb swim उससे swimming आता है. एक verb break उससे breaking आता है. तो verb से जो अलग से एक रूप बनता है, फॉर्म होता है, वो भी एक verb है. मगर वो किस तरह verb में आता है? देखो folding जो ing एडेड verb है उसको हम लोग participle कहते हैं. एक वर्ब का बेस फॉर्म के साथ अगर ing ऐड हो जाता है उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं. ओके, पार्टिसिपल भी एक वर्ब में आता है. सो ing एडेड वर्ब पार्टिसिपल एंड दे आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. दे आर कॉल्ड व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, दे कम अंडर नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर में इंफिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरान, ये तीन वर्ब आता है. वर्ब का बहुत डिस्कशन होता है. एक डिस्कशन करने चाहूँगा तो एक पूरा दिन लग जाएंगे. तो तुम लोगों को इतना कुछ जानना नहीं है. बाद में तुम लोग जो अपर क्लास में जाओगे बहुत सारे कुछ धीरे धीरे जान जाओगे. तो मैं थोड़ा थोड़ा टच करके जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले, आइडिया रहे कि ये चीज़ होता है. सो दिस इज अ फोल्डिंग अम्ब्रेला. फोल्ड इज अ वर्ब. ing added verb is called participle and ing added verb is called present participle. They come under non-finite verb. Okay. Next. Don't sit on the broken chair. Broken, देखो sit main verb है. Sit is here the main verb और finite verb. Sit यहाँ पे actual verb है. और broken जो है एक break नाम का एक verb से आया है. तो ये भी verb है broken. और ये verb का third form है जिसको हम लोग past participle कहते हैं. क्या कहते हैं? Past participle. तो ये भी एक verb है जिसको हम लोग participle कहेंगे. और किस तरह participle है? Past participle. एक भाग का थर्ड फॉर्म, अगर कोई नाउन को पहले आता है, जैसे चेयर एक नाउन, उसको पहले आ गया. अम्ब्रेला एक नाउन, उसके पहले आ गया. तो भाग से एक नाउन से पहले अगर एक भाग आता है ing जुड़ा हुआ, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. और एक नाउन से पहले अगर कोई भाग आता है जिसका थर्ड फॉर्म रहता है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट पार्टिसिपल. दे कम अंडर नॉन फाइनाइट वर्ब. You need not to know so much in detail, but I am just discussing so that you know what are past participle, what are present participle. Now come to the next sentence. Boys play cricket. Boys play cricket. Boys subject, play verb, cricket object. So object is there for the verb play. So play verb has the object cricket. So play is transitive verb. And you know cricket is object. Why? Because if we ask question to the noun and the verb, boys and play, with the word what, the answer comes cricket. So here cricket is object. We get the object of the verb play. Now the play verb is transitive. Okay. Next sentence. Swimming is a good exercise. Swim is a verb, and from that word comes the verb swimming. Ing. Swimming. So I told you now a little ago that ing added verb is called participle, present participle. Here ing added verb swimming is there, but you cannot call it present participle. Okay? Why? Because this is the subject of a sentence. In this sentence, swimming is good exercise. This is the subject. Swimming is verb. Is what? Verb. Swimming subject. When the ing added word comes in a sentence as subject or object, they are called Ziran. Why? Because they act as noun.
Swimming here noun. Swim verb, swimming noun. Swim मतलब तैरना और swimming जो है वो क्या है? तैरने का जो काम होता है उस काम का नाम होता है। Swimming जो है तैरने का काम का नाम और swim जो है तैरने का काम। So swim is verb, swimming is noun, and here in this noun swimming is acting as subject of the verb is. So when ing added verb act as the subject of a verb, that must be a noun, and that is what? Ziran. Okay? तो ziran क्या होता है? Ziran भी नॉन फाइनाइट verb के अंदर में ही आता है। नॉन फाइनाइट verb के अंदर में क्या आता है? Ziran आता है, participle आता है, infinitive आता है। Infinitive means to plus be1. Participle मतलब क्या है? verb plus ing or third form of verb. Now Ziran, what is Ziran? Ziran is the ing added verb which act as subject or object. ing added verb जो subject और object के रूप में काम करते हैं। And Ziran is called verbal noun. Verb से noun बनता है, that is verbal noun. Swimming जो है verb swim से आया है, ing add करके noun बन गया है और इस sentence का ये subject भी है। Swimming is called Ziran. Okay? He gave up smoking. वो smoking छोड़ दिए। Smoking छोड़ दिए। So he subject, gave up. He gave up. Gave up means gave up is a group verb. Okay? Gave and up meaning together. छोड़ देना। Give up मतलब छोड़ना। Don't give up your studies. पढ़ाई लिखाई छोड़ना नहीं। Give up your bad habits. तुम्हारा बुरा जो आदत जो है उसको छोड़ो। See, give up मतलब छोड़ना, उसका past is give up. Here give up is verb, okay? He gave up, वो छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे? Smoking. तो ये जो है subject he, give up verb, उसके बाद एक ing added word आया है और इस सेंटेंस में object के रूप में काम कर रहा है। देखो object ही है, he gave up, वो छोड़ दिए, what? What से क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग subject और verb को, जो आंसर आता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बाप, वो छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए? व्हाट, क्या छोड़े? स्मोकिंग। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहा हो, आंसर आ गया स्मोकिंग और ing added verb smoking और here this verb is acting as object of the sentence, that means object of the verb give up के ऑब्जेक्ट के रूप में स्मोकिंग काम कर रहा है। So smoking here is object and this word smoking is Ziran. क्यों Ziran? Ziran क्या होगा? वर्ब के साथ ing लगा हुआ एक वर्ड होगा और वो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। मतलब एक सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करेंगे। वर्ब के पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद में भी आ सकता है। So those are called Ziran. Okay? Now I think I could make you understand that what are verbs, how many types of verbs are there, and what role they play in a sentence. What type of verb is there? You can understand easily if you listen the discussion carefully. So hope you learned so much about verbs and more you will learn in later classes. Okay? So I want to end my class here.